Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will be discussing about John Milton's work Lycidas. John Milton was born on 9 December 1608 and died 8 November 1674. John Donne belonged from the Puritan age. His work Lycidas was written in 1637 and published in 1638. His father was Senior John Milton and mother Sarah Jeffrey. His education at Paul's School and Christ's College, Cambridge. At Cambridge, Milton was known as the Lady of Christ. During his Cambridge years, Milton became friend with Edward King, to whom he later dedicated an elegy, Lycidas. The word elegy, it means शोक गीत. शोक गीत मतलब जब आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड, जब आपके बहुत डियर वन जब चले जाते हैं इस दुनिया से, तब उनके रिलेटेड आप जब भी बात करते हो तो बहुत सैड फील करते हो, बहुत अपसेट हो जाते हो, तो काइंड ऑफ एलिजी ही है वो. The year 1652 was a dark period for Milton. Here dark period mention इसलिए है क्योंकि उस टाइम में मिल्टन के साथ बहुत बुरी चीजें हुई थी, उनके लाइफ के साथ बहुत दुखद घटनाएं घटी थी. Since he lost his eyesight completely and his first wife Mary died. After the restoration of Charles II to the throne in 1660, Milton was arrested as a defender of the Commonwealth, fined and soon released. He spent rest of his life in writing famous work, and there one of his famous work is Lycidas. Lycidas is one of the greatest pastoral elegy. Here the word pastoral, it means गांव वाला, जो गांव के लोग होते हैं, and it is the poem in which Shepherd represented as lamenting the death of his companion. Here the word shepherd, it means चरवाहा. तो आप रिलेट कर सकते हो, जो चरवाहा होते हैं वो ज़्यादातर गांव में ही पाए जाते हैं, जो गाय भेड़ बकरियों को चढ़ाने के लिए ले जाते हैं. The name Lycidas is derived from Theocritus. He is a Greek author. Iliad's little poem where Lycidas was a poet and Gothard. The poem is divided into 6 sections. Firstly, the prologue. Secondly, the 4 main parts, the 4 sections. And the last one is an epilogue. So basically, Lycidas is an elegy. मिल्टन ने ये एलिजी अपने डियर वन, अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग को जब खो दिया था, तब उस दुख में उन्होंने ये पोएम लिखा था. द पोएम concludes with Lycidas rising from dead, entering heaven and being entertained by saints. It is mostly written in iambic pentameter with irregular appearing short lines of 6 syllables. Prologue means a prologue is an opening to a story that establishes the context and give background details, often some earlier story that lies into the main one and other miscellaneous information. This term is derived from Greek, and the term epilogue, a section or speech at the end of the book or play that serves as a comment on or a conclusion to what has happened. Basically, this epilogue word is also derived from Greek. So here we start the poem. Yet once more, O ye laurels, and once more, ye myrtles brown with ivy never sere. बेसिकली यहाँ पोएट कह रहे हैं येट वंस मोर, मैं एक बार फिर से आया क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ. ओ ये लॉरियल्स, लॉरियल्स एक तरह का फ्लावर है. येट मर्टल्स ब्राउन, ये भी एक तरह का फ्लावर प्लांट है.
विथ आईवी नेवर सीड। विथ आईवी नेवर सीड इट मीन्स ये आईवी एक तरह का एवरग्रीन प्लांट है। इट मीन्स जो कभी नहीं सूखता है। आई कम टू प्लक योर बेरीज हार्श एंड क्रूड। मैं तुम्हारे बेरीज को प्लक करने आया हूं, तोड़ने आया हूं। हार्श एंड क्रूड, अनराइप बेरीज। हार्श एंड क्रूड इट मीन्स अनराइप बेरीज। एंड विथ फोर्स्ड फिंगर्स रूड, और अपने फिंगर से, फोर्स फिंगर से, क्योंकि आप समझ सकते हो जब भी कोई चीज पूरी तरह से पकी नहीं होती है, राइप नहीं होती है, तो उसे तोड़ने के लिए थोड़ा फोर्स यूज करना पड़ता है। शैटर योर लीव्स बिफोर द मेलविंग ईयर। हेयर मेलविंग ईयर मीन्स जो पकने का, फ्रूट्स पकने का सही टाइम होता है, उसके पहले ही मैं तुम्हारे बेरीज को तोड़ने आया हूं, जिसके कारण तुम्हारे जो लीव्स हैं वो भी शैटर हो जाएंगे, कुछ टूट जाएंगे। बिटर कंस्ट्रेंट एंड सैड ओकेजन डियर। इट मीन्स बिटर यहाँ पे आप समझो सैड, मतलब कॉन्स्टेंट मतलब नीड, मतलब एक ऐसा ओकेजन हो रखा है जो कि बहुत सैड है और मुझे उसके लिए बहुत नीड है, इसलिए मैं तुम्हारे बेरीज को तोड़ने आया हूं। कंपेल्स मी टू डिस्टर्ब योर सीजन्स ड्यू। इट मीन्स कि तुम्हारे सीजन ड्यू होने के पहले मुझे फोर्स किया जा रहा है तुम्हें तोड़ने के लिए। कंपेल्स मी टू डिस्टर्ब यू। फॉर लिसिडास इज डेड, क्योंकि अब लिसिडास मर चुका है। डेड बिफोर हिज प्राइम, इट मीन्स हेयर ERE, इट मीन्स बिफोर, बिफोर हिज प्राइम इट मीन्स वो अपने समय से पहले। लिसिडास एक बहुत यंग एज में मर चुके थे, तो यहाँ वही कह रहे बिफोर हिज टाइम। यंग लिसिडास एंड हैड नॉट लेफ्ट हिज पीर। इट मीन्स यहाँ पे लिसिडास को कंपेयर कर रहा है कि लिसिडास किसी से भी कंपेयर्ड होने के लिए नहीं है, वो बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छे थे। Who would not sing for Lycidas? लिसिडास के लिए कौन नहीं गाना गाएगा? He knew himself to sing. वो खुद गाना गाना बहुत अच्छे से जानते थे। Here गाना गाना it means बहुत अच्छी lofty rhymes लिखना, बहुत अच्छे अच्छे rhymes लिखना। And build the lofty rhyme. Here the word lofty rhyme it means impressive rhymes, impressive poems लिखना। He must not float upon his watery bier. Here the word बियर मीन्स ग्रेव एंड वाटरी बियर रिप्रेजेंट एयर, क्योंकि वो पानी में डूब के मरे थे, पानी में उनकी मौत हो गई थी, इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहे हैं। अनवेप्ड मतलब कोई ऐसा नहीं है जो लिसिडास के लिए नहीं रोएगा, अनवेप्ड रहेगा। एंड वेल्टर टू द पार्चिंग विंड विदाउट द मीड ऑफ सम मिलीडियस टीयर, और मिलीडियस टीयर होगा। जो भी लोग बेसिकली यहाँ जो पोएट हैं, लिसिडास के जो फ्रेंड है, वो कह रहे हैं कि कौन ऐसा है जो लिसिडास के लिए गाना नहीं गाएगा, कौन है जो उनके लिए नहीं रोएगा और मिलीडियस टीयर नहीं निकलेगी उनकी आवाज में। सो कम टू द नेक्स्ट वन। बिगिन देन सिस्टर्स ऑफ द सैक्रेड वेल। बिगिन देन मतलब शुरू करो। Sisters of the Sacred Well. Here, Sisters of the Sacred Well means the 9 muse. In Greek mythology, represent the 9 muse who inspire the poet to write poetry. तो यहाँ पे poet Sisters of the Sacred Well से कह रहे हैं मुझे inspire करो poetry लिखने के लिए। That from beneath the seat of Jove doth spring. Begin and somewhat loudly sweep the string. मतलब तुम बहुत जोर से लाउड म्यूजिक बजाओ, मुझे बहुत पोएट्री लिखना है, मुझे बहुत उसके लिए इंस्पिरेशन की जरूरत है, प्लीज मुझे इंस्पायर करो। लाइक पोएट wants to inspire himself as he want to write poetry for his dear friend. Hence with denial vain and co-excuse. Here it means पोएट कब से बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, तो अब कह रहे हैं ओके फाइन, अब मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। नाउ देयर इज नो मोर एक्सक्यूज, आई हैव टू राइट पोएट्री। सो मे सम जेंटल म्यूज। तो जेंटल म्यूज आप लोग ये बताओ
with lucky words favor my distant urn, and as he passed his turn, and bid fair peace be to my sable shroud. तो इन लास्ट 4 लाइन्स में पोएट मूस से पूछ रहे हैं, जेंटल म्यूज से, सो में सम जेंटल म्यूज, तो क्या जो आप लोग जेंटल म्यूज हैं, विथ लकी वर्ड्स फेवर माई डिस्टेंट अर्न, तो क्या मैं, मेरे लिए आप लोग, जब मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, हेयर द वर्ड डिस्टेंट अर्न, इट मीन्स अर्न, तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि कलश जो होती हैं जिसमें जब लोग चले जाते हैं उनकी अस्थियां जो रहती है, तो ये बेसिकली क्रिश्चियन पोएम है, तो यहाँ पे तो वो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ओवरऑल ये ग्रेव की बात कर रहे हैं कि जो जेंटल मूज, आप लोग ये बताओ, जो मेरा ग्रेव जहाँ रहेगा, एंड एज ही पासेस टर्न, अगर उस आसपास से कोई पोएट या कोई इंसान जाएगा तो वो क्या थोड़ी देर के लिए रुक के मेरे बारे में कोई पोइट्री लिखेगा, एंड बिड फेयर पीस बी टू माई सेबल श्राउड, और यहाँ सेबल श्राउड मतलब जो वो कभी जो लोग चले जाते हैं उनको कपड़े में लपेट के जो रखते हैं, एंड बिड फेयर पीस मतलब कोई वहाँ कुछ सेकेंड के लिए रुकेगा और मुझे रेस्ट इन पीस कहेगा और मेरे बारे में क्या पोएट्री लिखेगा, क्या मैं इतना लकी रहूंगा। द थर्ड स्टैंजा, फॉर वी वर nursed upon the self same hill, fed the same flock by fountain, shade and rill. Together both o'er the high lawns appeared, under the opening eyelids of the morn. तो आप इन सब वर्ड से समझ सकते हो कि पोएट शेफर्ड से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हमने पहले भी अर्ली स्लाइड्स में भी देखा था कि बेसिकली ये पोएम एक एलिजी है जिसमें शेफर्ड्स वगैरह के बारे में बातें हो रही है। तो यहाँ पोएट अपने और अपने बचपन के साथी के बारे में इस तरह के वर्ड्स में बात कर रहा है। फॉर वी वर नर्स्ड अपॉन द सेम हिल, नर्स्ड मतलब नर्स्ड अपॉन द सेम हिल, इट मीन्स कि हम लोग सेम हिल पे बड़े हुए थे, मतलब हम लोग एक जैसे थे, हम लोगों का बचपन एक जैसा गुजरा है, हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं। फेड द सेम फ्लॉक, सेम फ्लॉक को हम फेड करते थे, बाई फाउंटेन, शेड एंड रील, टुगेदर बोथ बिफोर, हेयर द वर्ड ERE, इट मीन्स बिफोर, बिफोर द हाई लॉन्स अपीयर्ड, अंडर द ओपनिंग आईलिड्स ऑफ द मॉर्न, हेयर द वर्ड मॉर्न, इट मीन्स मॉर्निंग। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मॉर्निंग, सवेरे होने के पहले जो हल्की हल्की अंधेरे रहते हैं वहां, उस समय हम लोग लॉन में अपीयर्ड हो जाते थे, पहुंच जाते थे, जब सुबह होने से बिल्कुल थोड़े पहले। वी ड्रोव अ फील्ड एंड बोथ टुगेदर हर्ड, हम लोग ड्रोव करते थे फील्ड में, जो हमारे जिसको भी हम लोग चढ़ाने जाते थे। What time the grey fly winds her shortly horn, और हम लोग जो भी फ्लाई वगैरह उस टाइम में जो आवाज करते हैं, ग्रे फ्लाई एंड शर्टली हॉर्न, हम वो आवाजें बहुत अच्छे से सुन सकते थे क्योंकि उस समय बहुत शांति होती है। बैटनिंग आवर फ्लॉक्स विद द फ्रेश ड्यूज ऑफ नाइट, फ्रेश ड्यूज ऑफ नाइट हेयर, इट मीन्स जो सुबह सुबह ओस की जो बूंदें होती हैं जो घास पे या फिर पत्ते पे लगी होती हैं। तो बैटनिंग आवर फ्लॉक्स मतलब हम अपने फ्लॉक्स को जब वहां ले जाते थे चराने के लिए तो वो लोग खाते पीते थे और उससे स्ट्रांग बनते थे। हेयर द वर्ड बैटनिंग, इट मीन्स स्ट्रांग। ऑफ टिल द स्टार दैट रोज एट इवनिंग ब्राइट, और कभी कभी हम उस सुबह से लेके जो शाम के वक्त का समय होता है हम तब तक वहां रुक जाते थे जब तक शाम का तारा ना निकल जाए। तो इवनिंग स्टार आप समझ जानते हो, जो वीनस को कहते हैं हम लोग। Towards heavenest descent had slowed his wrestling wheel, जो सुबह से शाम तक की जो समय होती है। Meanwhile the rural ditties were not mute, तो यहाँ पे भी आके मैं और मेरे फ्रेंड्स गाना गाते थे। Tempered to the autumn flute, और फ्लूट बजाते थे। एंड उससे क्या होता था, रफ स्ट्रेट्स डांस एंड फॉन्स विद क्लोवन हील, जो स्ट्रेट्स रहते थे वो डांस करते थे और जो फ्लॉन्स रहते थे वो विद क्लोवन हील पे सब डांस करने लगते थे हम लोग के फ्लूट पे, हम लोग के सॉन्ग पे। फ्रॉम द ग्लैड साउंड वुड नॉट बी एब्सेंट लॉन्ग, बट अब वो जो ग्लैड साउंड है अब वो एब्सेंट है।
एंड ओल्ड डेमेटिस लव टू हियर आवर सॉन्ग। और अब हर कोई हमारे उस सॉन्ग को सुनना चाह रहा है, लेकिन अब नहीं सुन पा रहा है। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड तुम चले गए हो। Now come to the fourth stanza. But oh the heavy change, now thou art gone, now thou art gone and never must return. यहाँ पे पोइट कह रहे हैं बट ओ द हैवी चेंज, मतलब अब बहुत सारी चीजें बदल चुकी है, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम जा चुके हो। नाउ दो आर्ट गॉन, दो रिप्रेजेंट यू, अब तुम जा चुके हो। एंड नेवर मस्ट रिटर्न, और कभी ना आने के लिए तुम जा चुके हो। दी शेफर्ड, यू शेफर्ड, अपने फ्रेंड को कह रहा है। दी द वोट्स एंड डेजर्ट केव्स विथ वाइल्ड टाइम एंड द गैडिंग वाइन ओवरग्रॉन। अब वो वुड्स और अब वो डेजर्ट केव्स विद द वाइल्ड टाइम एंड द गेटिंग वाइन ओवरग्रोन, ऑल देयर इकोज मॉर्न। और ये सब तुम्हारे जाने की याद में इको कर रहे हैं। इनके जो आवाजें हैं मॉर्न ये जो मॉर्न कर रहे हैं वो चीजें इको हो रही हैं। द विलोज एंड द हैजल कॉप्सिस ग्रीन। हेयर द वर्ड विलोज ऑल्सो अ फ्लावर, अ प्लांट, and copse is also a flower and plant. You can compare it with. So the willows and the hazel copses green shall now no more be seen. और अब जो ये सुंदर सुंदर पौधे थे, सुंदर सुंदर प्लांट्स थे, फूल थे, अब कभी नहीं दिखाई देंगे। Fanning their joyous leaves to thy soft lays. जो फैन करते थे, जब हम लोग फ्लूट बजाते थे, जब हम लोग गाना गाते थे, राइम्स करते थे, पोइट्री करते थे, तब ये फ्लोट करते लेज करते थे, लहराते थे, और ये अब कभी नहीं होगा। एज किलिंग एज द कैंकर टू द रोज। हेयर द वर्ड कैंकर, इट मीन्स अ डिजीज जो कि रोज के प्लांट को खराब कर देता है। और टेंट वॉर्म टू द वीनलिंग हर्ड दैट ग्रेज। और फ्रोस्ट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डिजीज जो कि फ्लावर्स को डेड कर देता है, खराब कर देता है। दैट देयर गे वॉर्ड्रोब वियर व्हेन फर्स्ट द वाइट थ्रॉन ब्लोज सच लिसिदास दाई लॉस टू शेफर्ड्स ईयर। तो बेसिकली ये पोएट हर चीजों को कंपेयर करके बता रहे, क्योंकि अब तुम चले गए हो तो अब चीजें बहुत बदल चुकी है, और तुम ऐसी जगह जा चुके हो जहां से अब तुम कभी नहीं वापस आओगे। तो जो हमारे गाने पे, हमारे फ्लूट पे जो भी पेड़ पौधे लहराते थे, खुश होते थे, जॉयफुल होते थे, अब वो कभी नहीं होगा। Here the fifth stanza. Where were ye nymphs when the remorseless deep closed over the head of your loved Lycidas? यहाँ पे जो निम्स है ये गॉडेस ऑफ वाटर हैं, जो कि मिथिकल फिगर हैं ग्रीक माइथोलॉजी से। उनसे पोएट पूछ रहे हैं वेयर वर यू, वाई इट मीन्स यू, निम्स तुम कहाँ थे जब क्लोज्ड ओवर द हेड ऑफ योर लव्ड लिसिडास, क्योंकि लिसिडास से तो तुम सब भी प्यार करते थे, वो तुम्हारा भी प्यारा था, तो तुम कहाँ थे जब वो पानी में डूब रहे थे, क्लोज्ड ओवर द हेड। फॉर नाइदर वर यू प्लेइंग ऑन द स्टीप where your old bards the famous Durides lie. Durides, one of the ancient Greek teacher. तुम लोग कहाँ थे? तुम लोग स्टीप पे भी प्ले नहीं कर रहे थे, ओल्ड बार्ड्स के पास भी नहीं थे, nor on the shaggy top of Mona High, it means one of the mountain, not yet where Diva spreads her wizard stream. Diva is also a river. तुम लोग वहां भी नहीं थे जहां डीवा के विजार्ड स्ट्रीम्स निकलते हैं, स्प्रेड होते हैं। मी आई फाउंडली ड्रीम, ओ मी मैं इमेजिन कर सकता हूँ, हैड ये बिन देयर फॉर वॉट कुड दैट हैव डन, अगर तुम लोग वहां होते तो शायद बचा सकते थे। यहाँ पोएट निम से पूछ रहे हैं कि आखिर तुम लोग कहाँ थे, अगर तुम लोग शायद वहां होते तो मेरे बिलव्ड फ्रेंड को बचा सकते थे। वॉट कुड द मूज हर सेल्फ दैट ऑर्फियस बोर, the muse herself for her enchanting son. Here the word Orpheus, it means he is the son of Muse. Okay, तो ऑर्फियस की भी मौत कुछ इसी तरह पानी में हुई थी। तो वही यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है कि अगर म्यूज अपने बेटे ऑर्फियस को नहीं बचा पाई
तो तुम लोग भी अगर होते भी तो क्या कर लेते। एक ही सेकंड वो पूछ रहे थे कि तुम लोग शायद होते तो बचा लेते, बट अगले ही सेकंड वो सोच रहे हैं कि शायद नहीं बचा पाते, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहता है। होम यूनिवर्सल नेचर डिड लैमेंट, क्योंकि मूस के सन ऑर्फियस की मौत पे पूरा नेचर, पूरा यूनिवर्स लैमेंट किया था, शोक मनाया था। When by the root that made the hideous roar, क्योंकि ऑर्फियस की मौत उसको टुकड़े टुकड़े करके की गई थी, तो टुकड़े टुकड़े करने के बाद जो हिडियस रोर, जो आवाजें आती है जोर जोर की, his gory visage down the stream was sent. Here the word gory it means bloody, visage it means figure, तो उसके जो bloody figure जो उनके टुकड़े टुकड़े हुए थे, down the stream was sent, stream के साथ बहते चले गए। Down the swift herbers to the lesbian shore. Here the word lesbian means one of the Greek poet whose name was Lesbos, who here the word Hebrus it means one of the stream, जहाँ तक ऑर्फियस की जो बॉडी के टुकड़े टुकड़े हुए थे वो बहते हुए चले गए लेस्बियन के शोर तक। So that's it for this video lecture. Thank you everyone. We will cover the rest of the stanza in the next part. Keep enjoying and keep watching.